Okay, we were studying about the role of education in service sector. So we had studied that to develop our service sector, we need to develop our education system. Also, we studied that for our human capital formation, for human development, we need to invest. Invest in what? Invest in the basic facilities like education, health, workplace, training, migration and information. ठीक है. First of all, for human development we need proper food, proper clothing and proper shelter or housing for everyone. Okay, these are the basic facilities for a human development. Now, to turn that human resource into human capital, we need to make some investment in education, that is by opening new schools, colleges, institutes, medical colleges, engineering colleges, management, different types of educational institutes. And we need to provide different facilities in those schools, colleges and institutions, like the government is providing free books, free meals and other facilities, dress also for poor children, dress, bicycle, bags, learning kits and other facilities in the classrooms. Even it is providing for scholarship and this merit cum means scholarship facilities for those students of good academic record. Now the government has extended free books for 9th to 12th class. It is installing better infrastructure in the classrooms, in the schools. So this is all the investment in education. Then we need investment in health by improving our healthcare system, by improving our hospitals, and which is being done. That is commendable. We need to praise our government and our officers for doing that. So our health system is also being updated. Then workplace, wherever the workplace where people work, that needs to be improved, that needs to be fit according to the human needs. There should be good environment to work for everyone. If we want people to work better, we need to give them a better working condition, better working environment. Then training. We need to invest in training. We need to conduct training programs from time to time. We need to establish training institutes. See, now in Bihar, in every district you will find so many training institutes. There is DITE, District Institute of Education and Training. There is what you call primary PTC, Primary Teachers Training College, PTTC. Then there is BRC, Block Resource Center. Then there is CRC, Complex Resource Center. So there are so many institutes for training. They have been established, and also there have been special teacher training colleges. So, and then regular training is to be done. I have already explained you that in this teacher recruitment, in the latest changes in the education department, all the teachers are being given training before job, also during the job. Those teachers who are already working in the education department for last 5 years, 10 years or more, even more than 20 years, they are also being given fresh training. That all the senior headmaster, principals, whatever, they are also being given training.
Their training is being conducted by BIPARD, B-I-P-A-R-D, BIPARD, Bihar Institute of Public Administration and Rural Development. It is the head institute in Bihar for training. BIPARD, B-I-P-A-R-D, Bihar Institute for Public Administration and Rural Development. BIPARD, it has offices in the Gaya and Patna, headquarter in Patna. So training, investment is to be done, regular training, residential training. That means people will stay there while they are getting trained. So the training is very important, because from time to time people lose their skills, they forget their skills. At the time of joining they have a lot of skills, but over a period of time, because they don't use those skills, they don't want to work more, because they get security, they get a feeling of security that our job is secure, so we don't need to exert more, we don't need to work hard. This is what happens to the government employees, all from officers and even ministers to the bottom clerk. Everyone, when they get the job, they feel that now we are secure, so we don't need to work hard. In private sector, there is a constant threat that you will lose your job if you don't work well. At any period, any state in life, even if you are very senior and you are not working well, you will be removed from your job. But in government sector, once you get the job, people become secure that now nothing can happen to us, so we will not work more. That mindset has to be changed. People don't know that, they don't realize that if you work hard, it will develop yourself and it will be beneficial for you in the life. But anyway, people have different mindset and they lose their skills because they are not working hard, so they lose their skill and become inefficient. So however efficient they are at the time of joining, after some years they become totally inefficient. ये बहुत ही एक कड़वी सच्चाई है गवर्नमेंट सिस्टम की। इसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी में पढ़ाते हैं, ट्रेंड इन कैपेसिटी इसको बोलता है। इसको बोला गया है थ्योरी में ट्रेंड इन कैपेसिटी, यानी अपने आप को वो ट्रेन करते हैं कि हम निकम्मे हो जाएं, क्योंकि वो जान के काम अवॉइड करते हैं, काम नहीं करते हैं, या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिसमें दिमाग पर जोर पड़े, उनके स्किल पर जोर पड़े, और अपने आप को धीरे धीरे डल बना लेते हैं। और वो ये रियलाइज बहुत लोग जान के करते हैं, बहुत लोग बिना जाने एक करते हैं, वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम अपना सारा क्वालिटी खोते जा रहे हैं। और बाद में जब 10-20 साल गुजर जाते हैं, अचानक उनको जब जोर पड़ता है, वो लगता है अरे हमको तो कुछ आता ही नहीं, हम तो बहुत पिछड़ गए हैं बाकियों से। ऐसे लोगों का ही प्रमोशन नहीं होता है आगे। वो जो अब जिस पर ज्वाइन किए थे, एक आध प्रमोशन होके वहीं रह जाते हैं, क्योंकि प्रमोशन उन्हीं का होता है जो एक्टिवली वर्क करते हैं। तो बेकार हो जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, धीरे धीरे बेकार होते चले जाते हैं, बिना काम के, कोई काम के नहीं रह जाते हैं, खाली सीनियर होते जाते हैं और बेकार होते हैं। तो जो जितना सीनियर है गवर्नमेंट में, वो समझिए उतना ही बेकार है। दिस इज द रियलिटी। हम सोचते हैं गवर्नमेंट में सीनियर पोस्ट पर है तो बहुत भाई लायक होंगे, जबकि हालात ये है कि जो जितना सीनियर पोस्ट पर है वो उतना ही नालायक हो जाता है, उतना ही बेकार हो जाता है। तो इसी के लिए सरकार ने कई बार रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि लोग को समय समय पर टेस्ट लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और टेस्ट लीजिए, और तभी प्रमोशन दीजिए। और अब टेस्ट होते हैं 10-10 साल पर, और तब प्रमोशन मिलता है नेक्स्ट ग्रेड।
नहीं तो आप उसी ग्रेड में रह जाइए। तो अब टेस्ट देना पड़ता है, हालांकि वो टेस्ट भी, और यहाँ तक कि कहा गया है, रिफॉर्म्स कमेटी जो बना था उसमें तो ये कहा गया है कि यूपीएससी या बीपीएससी से जो जाते हैं, जो भी अधिकारी हो, आईएएस हो या इधर स्टेट में हो या जो भी हो, उनका समय समय पर 10-10 साल पर टेस्ट लिया जाए या कुछ साल पर टेस्ट लिया जाए, और अगर वो नहीं पास करे उनको निकाल दिया जाए। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट लागू नहीं हो पाता है। तो कहा गया है कि निकाल दिया जाए जो टेस्ट नहीं पास करते हैं। तो पता चला 10 साल बाद आप कोई काम के ही नहीं है, जबरदस्ती सैलरी खा रहे हैं, आप सरकार का काम धाम कर नहीं रहे हैं। सब में होता है टेस्ट, सब में हर गवर्नमेंट सर्विस में होता है। मतलब रेगुलर प्रमोशन के लिए नहीं, उसमें ग्रेड चेंज बोलते हैं, अलग अलग ग्रेड होता है। जब आप सर्विस करते हैं, मान लीजिए 30 साल सर्विस करते हैं, तो उसमें आपका 8-10 साल पर ग्रेड चेंज हो जाता है, आप सीनियर ग्रेड में वैसे प्रमोट होते जाते हैं। हाँ, उसके लिए एग्जाम ऐसे भी होता है, समय समय पर कुछ एग्जाम होते हैं, लेकिन वो एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर आप पास नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ग्रेड में नहीं जा पाएंगे। जैसे यूपीएससी का है, वो 3 ग्रेड में बटा हुआ है, जूनियर ग्रेड, मिडिल ग्रेड और सीनियर ग्रेड। ठीक है, तो शुरू का 10-12 साल 13 साल जूनियर ग्रेड में रहता है आदमी, फिर मिडिल ग्रेड में आता है, फिर सीनियर ग्रेड में जाता है। तो वो अगर आप एग्जाम नहीं पास करेंगे तो नेक्स्ट ग्रेड में नहीं जाइएगा। जैसे इसी तरह जैसे जो स्टेट सर्विस से जाते हैं, मान लीजिए बीपीएससी से गया, डीएसपी है, तो 10-12 साल बाद उसका जो है फिर टेस्ट होता है, वो करेगा। हालांकि देखिए कैसे गवर्नमेंट करता है, लेकिन वो तो टेस्ट तब वो डीएसपी से एसपी हो जाएगा। हाँ, और नहीं पास करेगा तो डीएसपी ही रह जाएगा। या उसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बीएएस मिला है, वो आईएएस में कन्वर्ट हो जाता है। खैर, तो कहने का मतलब है कि अब वो जॉब से रिलेटेड होता है, बहुत सारा चीज थ्योरी होता है, वो अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें। खैर, बाहर से उसको लेना देना नहीं रहता है, वो डिपार्टमेंट में अंदर ही होता है। सो कहने का मतलब है कि देखिए, सरकार आपको सैलरी दे रहा है, अच्छा फैसिलिटीज दे रहा है, सारा सुविधा दे रहा है, तो भाई वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप काम कीजिए। तो आप, सरकार का है कि हम अच्छे अधिकारियों को चुनते हैं, उसको बहुत अच्छा सैलरी देता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज देता है, सब चीज देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो उम्मीद करता है कि हमारे लिए अच्छा काम करें। तो हम अच्छा काम कब ले पाएंगे? अब वो अच्छा काम कब करेंगे? ये भी है कि उनको, बहुत लोग होते हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता है, ट्रेनिंग का कोई फैसिलिटी नहीं होता है, सरकार ट्रेनिंग कंडक्ट ही नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ट्रेनिंग जल्दी नहीं कंडक्ट करती, यूनियन गवर्नमेंट तो थोड़ा बहुत करती भी। तो इसीलिए, लेकिन अब बिहार इसमें बहुत अलग रोल निभा रहा है। बिहार जो इतना ट्रेनिंग करा रहा है, और उसकी शुरुआत हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो हमें नेचुरल है, आप ट्रेनिंग में जब इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, तभी आपको बेहतर लोगों को ट्रेनिंग देंगे, तो वो टीचर या जो भी जिनको देंगे आप अधिकारियों को, वो अच्छा काम कर पाएंगे, कुछ सीखेंगे। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग। देन माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी कि उनका जहाँ जगह जगह ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, वो भी ज़रूरी है। उसमें भी आपको मतलब फैसिलिटीज़ उनको देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अब यहाँ वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है, लोग नहीं होना चाहते हैं। अगर उनको फैसिलिटीज़ नहीं होगा, वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहेंगे, तो फिर वो काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, माइग्रेशन के लिए। एंड इंफॉर्मेशन, और उनको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी होता है, आप चले जाइए बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाइएगा तो बोलेगा हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है क्या आदेश आया है। उसको किसी को पता ही नहीं रहता है कि क्या आदेश हुआ है या क्या कानून बना है या क्या चीज़ बना है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन पहुंचता ही नहीं है। सीनियर अधिकारी ने कोई आदेश दिया, वो पहुंचता ही नहीं है नीचे तक।
तो इंफॉर्मेशन तुरंत जाना चाहिए। आज देखिए इतना तेजी से हो रहा है, खासकर एजुकेशन सभी डिपार्टमेंट में, हर जगह, कि तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज 1 सेकंड में पहुंच जा रहा है, तेजी से इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। तो सब लोग जाग गए हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, क्या करना है नहीं करना है, दिन रात काम चल रहा है। तो उसके लिए जब सिस्टम बना तब ना, ऑनलाइन सिस्टम बना, व्हाट्सएप पर सबको एक्टिव किया गया, बहुत सारा चीज उसमें डेवलप किया गया, सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया। अब बताया अभी आपको कि हेडमास्टर हैं, उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं, आप देखेंगे नहीं देखेंगे मैसेज, कभी कोई आ रहा है, आदेश आ रहा है, कुछ आ रहा है, उनको पता नहीं है क्या आदेश आया है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन में भी हमें इन्वेस्ट करना हो, लेकिन जब हम इसमें कर रहे हैं जैसा बिहार सरकार कर रही है, तो डेफिनेट है कि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी कि अच्छे कुशल लोग डेवलप होंगे, जो कल को समाज को आगे ले जाएंगे, डेवलप करेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में रहेंगे। देखिए 10 ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ एफिशिएंसी, एबिलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब लाइन है, ध्यान से एक एक लाइन सुनिएगा। देखिए, दस ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ एफिशिएंसी, एबिलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल जो है, एक आदमी जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक स्टॉक है, यानी उसमें जमा है चीजें। क्या जमा है? एफिशिएंसी यानी अच्छे से काम करने की एबिलिटी, एबिलिटी यानी उसमें नॉलेज है, बहुत जानकारी है, अनुभव है, एजुकेशन एंड नॉलेज, तो ठीक है, यही शिक्षा हो गई, नॉलेज। तो इन चीज़ों का ही उसमें जमा होना, यानी एक ह्यूमन कैपिटल है, एक डॉक्टर है मान लीजिए, तो डॉक्टर क्या है, उसके पास एफिशिएंसी है, अगर उसको अपना स्किल है अच्छे से देखने का, पेशेंट या ऑपरेशन करने का या जो भी करने का, वो उसका एफिशिएंसी हो गया। एबिलिटी हो गया, यानी कि वो कितना अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट कर पाता है, क्या क्या बीमारियों को देख पाता है। एजुकेशन, उसका जो अपना MBBS डिग्री हो गया, और जो भी उसने अपना एकेडमिक पढ़ा है। एंड नॉलेज, और जो वो इन द जॉब प्रैक्टिस करते हुए भी सीखता है बहुत सारे तरह सोर्सेज से। तो ये उसका, इसी को मिला के जब जमा होता है किसी व्यक्ति में किसी समय, तो उसी को हम ह्यूमन कैपिटल, वी कॉल हिम अ ह्यूमन कैपिटल। एक डॉक्टर है जिसने अच्छे से डिग्री अपनी पढ़ाई की है और अच्छे से उसने काफ़ी काम किया है, सालों काम करते हुए उसने बहुत सारे अनुभव सीखे हैं। तो आज के समय में अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से उसका शरीर ठीक से चल रहा है, वो ठीक से पेशेंट्स को देख रहा है, तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब लोग क्या है, डॉक्टर को देख लीजिए, ऐसे ऐसे हैं, बहुत उम्र हो गया, 80 साल पार कर गया, फिर भी उनसे जबरदस्ती देख रहे हैं। अरे भाई, जब 80 साल पार कर गए तो न उनका दिमाग ठीक से काम करेगा, न उनका आँख ठीक से काम करेगा, न उनका कान ठीक से काम करेगा, सोचने की शक्ति ठीक से काम नहीं करेगी, याददाश्त नहीं रहेगी, तो अच्छा डॉक्टर कैसे हो सकता है? अच्छा डॉक्टर का मतलब थोड़े कि जिंदगी भर का लाइसेंस ले लिया कि हमेशा अच्छा रहेगा। जब वो जवान था या अच्छे स्वास्थ्य में था तब वो ठीक था, अच्छा था, अनुभव था। अब वो 82 साल का हो गया है, उसको सुनाई नहीं कम देता है, उसको दिखाई कम देता है, वो सोचता कम है, उसके हाथ पैर कांपेंगे, उतना वो नहीं रहा, तो वो अच्छा डॉक्टर कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल वो थे एक समय, लेकिन अब वो, बिकॉज ही इज नॉट वेल फिजिकली एंड मेंटली, ही हैज बिकम वेरी ओल्ड। तो अब कह सकते हैं कि आज भी वो ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन नॉट लाइक द टाइम बिफोर, पहले की तरह नहीं। एनीवे, लोग जो है फिर भी छोड़ते नहीं डॉक्टर को कि नहीं, देख उन्हीं से दिखाएंगे। अरे भाई, उम्र हो गया, अब दूसरे डॉक्टर जो यंग आए हैं और लोग हैं, उनसे दिखाइए। तो ये भी लोगों का समझ होता है, लोग सोचते हैं कि अरे क्या उम्र से फर्क पड़ता नहीं है। हर चीज भाई, हर चीज समय के साथ डिग्रेड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई IAS ऑफिसर है, ज्वाइनिंग के समय बहुत तेज तरार होता है, बहुत नॉलेज वाला होता है, बहुत
एबिलिटी वाला होता है, 10 साल में सब भूल जाता है, बेकार हो जाता है। तो जब ज्वाइन किया था तब वो ह्यूमन कैपिटल था, लेकिन 10 साल बाद ह्यूमन कैपिटल नहीं रहा। 10 साल क्या 5 साल 6 साल होते होते सब भूलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ इफिशियंसी, एबिलिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज at a particular period of time. This is the stock of all types of professional and efficient persons who are involved in productive activities. तो जब हम कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल, बिहार का ह्यूमन कैपिटल, तो उसका मतलब है कि इट इज द स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट पर्सन्स। मतलब किसी भी तरह के जो भी काम काज करने वाले जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो इफिशिएंट लोग हैं, वो सब को मिला के हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल किसी भी जगह। दिस इज द स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं, ऐसे जितने भी, एक तो प्रोफेशनल लोग हैं यानी जो कामकाज कर रहे हैं, और इफिशिएंट है जो अच्छे से कर रहे हैं, इन सभी लोगों को मिला के हम, मतलब वो किसी फील्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो आईएएस अधिकारी हो, वो कोई जूनियर क्लर्क हो, सेक्शन ऑफिसर हो, कोई कारपेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई लॉयर हो, कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, पेंटर हो, जितने मतलब किसी भी तरह का काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो अपने काम को अच्छे से कर रहा है, उसको अनुभव है, अच्छा नॉलेज है, तो उन सब को मिला के हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। वो सभी इस राज्य के या इस देश के ह्यूमन कैपिटल है। Thus, human capital formation is the process of increasing the members of process of increasing the number of efficient and यहाँ नंबर है, मेंबर नहीं है, नंबर। Thus, human capital formation is the process of increasing the number of efficient and qualified persons। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि ये प्रक्रिया है किसकी, उनकी संख्या बढ़ाने की, जो लोग कुशल हैं और ज्ञान वाले हैं, अच्छा अनुभव वाले हैं लोग, जो कामकाजी लोग हैं, जिनको अच्छा अनुभव है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाना, यानी ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को बनाना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी टू फॉर्म ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी ह्यूमन कैपिटल बनाने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल, स्किल्ड, ट्रेंड लोगों को बनाएं, डेवलप करें। गुड ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल सर्वेंट, साइकोलॉजिस्ट, टीचर एंड academician etc. प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल कौन बना रहा है, गुड ह्यूमन कैपिटल, अच्छे ह्यूमन कैपिटल कौन है, अच्छे कह रहा है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी यहाँ देखिए एबल वर्ड यूज कर दिया है। हर एडमिनिस्ट्रेटर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, यानी हर आईएएस अधिकारी, हर बीएएस अधिकारी ह्यूमन कैपिटल नहीं है। जो एबल है यानी जो कुशलता से एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो कुशल अधिकारी है। सोशल सर्वेंट, जो समाज सेवी है, सामाजिक कार्य करते हैं, जो सोशल सर्वेंट। साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजी की जानकारी और ट्रीट करते हैं लोगों को, पेशेंट्स को। टीचर, जो पढ़ाते हैं, एंड एकेडमिशियन, और जो तरह तरह के एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग हैं, दे प्रोड्यूस
नहीं, एकेडमिशियन एक्चुअली कहते हैं जो थोड़ा हाई एजुकेशन वाले, हायर एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं उनको एकेडमिशियन कहते हैं। हाँ, जो स्कूल तक रहे जो है ना, यानी कि ग्रेजुएशन तक या स्कूल तक जो रहे वो लोग को हम टीचर्स कहते हैं। उससे हायर में जो रहते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, या जैसे हम लोग पढ़ाते हैं सीनियर बच्चों को बीपीएससी, आईएएस, इस तरह के जो टीचर्स होते हैं तो उनको हम एकेडमिशियन कहते हैं। तो नहीं, जैसे समझ सकते हैं आप कि +2 सीनियर जो हो गए उनको एकेडमिशियन कहा जाता है, और +2 से नीचे जो रहे उनको टीचर्स कहा जाता है। हाँ, नहीं, जैसे 11th-12th में भी कोई ऐसा बहुत ही विद्वान कोई टीचर होता है तो उसको भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ होते हैं कि जो 11th-12th लेवल पर ही पढ़ाते हैं लेकिन काफ़ी ज्ञानी होते हैं और बड़ा नाम होता है उनका, ऐसे लोग को भी एकेडमिशियन। खैर, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं गुड ह्यूमन कैपिटल। दिस मीन्स दैट विथ ह्यूमन रिसोर्सेज more human capital investment in human capital is required। देखिए कहा जा रहा है, अब देखिए इस लाइन को समझेंगे कि यहां ऊपर आपको कहा कि गुड ह्यूमन कैपिटल लाइक डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, ये प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल। अब कहने का मतलब है कि जो गुड ह्यूमन कैपिटल होगा वही फिर ह्यूमन कैपिटल बनाएगा। कैसे? एक अच्छा टीचर होगा जो खुद पढ़ा लिखा होगा तब ना वो अच्छे बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के ट्रेन कर पाएगा। जो खुद टीचर पढ़ा लिखा नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा? और उनके द्वारा जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे आगे वो कैसे होंगे? वो पढ़े अच्छे नहीं होंगे, उनको नॉलेज नहीं होगा कुछ। तो कहने का मतलब है कि जो गुड ह्यूमन कैपिटल है वही आगे ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। यानी अच्छे टीचर होंगे तभी वो अच्छे स्टूडेंट्स क्रिएट कर पाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स होंगे तभी वो पेशेंट्स का बीमारी ठीक कर पाएंगे, अच्छे इंजीनियर्स होंगे तभी वो अच्छी चीजें जो भी है, अच्छे सड़क, अच्छे पुल, ये सब बना पाएंगे। तो यानी कि गुड ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं वही दे प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल। अच्छे साइंटिस्ट जो होंगे, तो इसीलिए यहां गुड वर्ड यूज किया गया है, गुड ह्यूमन कैपिटल लाइक साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल सर्वेंट, साइकोलॉजिस्ट, दे प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल। देखिए कहीं कोई विद्वान टीचर होता है, उसके पढ़ाता है जिस क्लास को, तो उसके बच्चों को नॉलेज होता है, आगे चल के वो अच्छा करते हैं, तो वो ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टीचर था वो गुड ह्यूमन कैपिटल था। आज देखिए, आज हमारा बिहार का हालत क्यों खराब हो गया? बिहार के लोगों का इमेज या अनपढ़ इनको क्यों बाहर समझा जाता है? लोग बहुत तरह का बात करते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख के निकल ही नहीं रहे अच्छे, पढ़ डिग्री खाली मिल जा रहा है, उनको नॉलेज नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो है पढ़ाने वाले पढ़ा नहीं रहे। हाँ, तो जब उनको पढ़ाने वालों को ही, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को ही नॉलेज नहीं है या नहीं पढ़ा रहे हैं, भाई बहुत लोग होते हैं नॉलेज होते भी नहीं पढ़ाते हैं, तो वो भी बेकार है। भले आपको नॉलेज है, आप पढ़ाते ही नहीं है जब बच्चों को। बहुत टीचर्स भी होते हैं नॉलेज उनको होता है लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं जिस भी कारण से। तो इस वजह से जब तो वैसे टीचर रहेंगे तो बच्चे उनसे कुछ सीखेंगे नहीं, जब सीखेंगे नहीं तो उनको काम कहाँ से मिलेगा? तो वो फिर छोटे मोटे ही काम करने के लिए मजबूर रहेंगे, बढ़िया काम नहीं मिलेगा उनको। तो यही कहा जा रहा है कि गुड ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस ह्यूमन कैपिटल। तो इसी को आगे लिख रहा है कि दिस मीन्स दैट विथ ह्यूमन रिसोर्सेज मोर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज रिक्वायर्ड। यानी कि कहा जा रहा है कि जैसे अब आपको, अब जैसे बिहार सरकार को ही हम अब स्टडी कर रहे हैं कि बिहार सरकार है, उसने देखा कि भाई हम लोग का इमेज सुधारना है, हमें अपने बिहार राज्य को अच्छे और लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है,
जो हमारे यूथ हैं, युवा हैं, उनको अच्छे से पढ़ा कर ट्रेन करके ताकि वो अच्छे नौकरियों पर जहाँ तहाँ काम करें। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए जो ह्यूमन कैपिटल था हमारा, उसको सुधारा जा रहा है। यानी जो टीचर्स थे उनको अब मेरिट वाले टीचर्स को लिया गया, बहुत कड़ा एग्जाम लेके उनको लिया गया, उनको इतना ट्रेनिंग हो रहा है, इतना मेहनत कराया जा रहा है, हार्ड वर्क करा। अभी टीचर्स परेशान हैं, बहुत उन पर टाइट किया हुआ है, उनको दिन रात काम करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा है, इससे हमारा राज्य का डेवलपमेंट होगा। मेहनत किए बिना तो डेवलपमेंट होगा नहीं। अब आप गवर्नमेंट में हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कैसे? और सरकार आपके लिए इतना फैसिलिटी आपको कर रहा है कि ठीक है, आपको सैलरी बिल्कुल टाइम पर मिल रहा है, सारा चीज आपके लिए किया जा रहा है, आपको इतना रिस्पेक्टेबल आपका पोजीशन है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करवा रहा है सरकार, लेकिन अच्छा है, इससे हमारा राज्य का डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने बताया कि बिहार कुछ सालों बाद एक मॉडल बनेगा देश के सामने, और ये याद किया जाएगा बहुत सालों तक जो आज हो रहा है, तारीफ किया जा रहा है, और कर भी रहे हैं लोग तारीफ। देखिए नीतीश कुमार को इतना वोट मिला, इस बार बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा चुनाव में, तो वो क्या है, लोगों द्वारा समर्थन है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं हम उसको तारीफ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इतना उम्मीद नहीं था, इतना सीट आया इनको लोकसभा इलेक्शन में। आज उनका पूरे देश में एक रुतबा बढ़ गया कि भाई इनकी पार्टी को इतने सीटें मिली हैं। अब इनका यूनियन गवर्नमेंट में हो गया दखल, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलेगी उस पर अब इनका कंट्रोल हो गया, तो वैल्यू बढ़ गया, इंपॉर्टेंस बढ़ गया, तो लोगों ने आपको समर्थन दिया जो आपने काम किया अच्छा। तो यही कहा जा रहा है कि आपको अगर चाहते हैं तो सरकार वही कर रही है, ह्यूमन हर जगह देखिए अच्छे अधिकारियों को लगा रही है, उनके लिए सारी व्यवस्था कर रही है, टीचर्स का ट्रेनिंग करा रही है, सबका ट्रेनिंग करा रही है, ताकि वो बच्चों को, और फैसिलिटीज भी दिया जा रहा है, स्कूल में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, तरह तरह का जो भी चीज़ फैसिलिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम बनाने हैं, बिल्डिंग बनाने, उन सब के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं। अब देखिए जितने गवर्नमेंट में हेडमास्टर वगैरह है ये सब परेशान है। हमसे एक हेडमास्टर कह रहे हैं, बहुत तेज तरह हेडमास्टर है, कह रहे हैं सरकार क्या उम्मीद करता है कि हम इंजीनियर का भी काम हम ही करें, हेडमास्टर भी हमें कर दे, ऑफिसर भी हमें, सब काम हम ही से करा लें। हम ही से पूछ रहा है कि कितना क्लासरूम बनाना है, क्या आपको जरूरत है, हम कोई सिविल इंजीनियर हैं। हेडमास्टर क्या समझ लिया कि सारा काम हम ही से करवा लेगा। अब बात है कि तकलीफ तो होगी, मेहनत करना पड़ रहा है, तकलीफ तो होगी। सरकार चाह रहा है कि भाई आपको इतना सैलरी किस बात का हम दे रहे हैं, तो काम करिएगा अच्छे से तब ना मेरे लिए। लेकिन हाँ, उनको काम करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो हर तरह का काम, क्योंकि उम्मीद है आप भाई एक क्वालिफाइड, आप हेडमास्टर हैं, एक प्रतिष्ठा का वो पोस्ट है, तो आपको उस हिसाब से अपना टैलेंट भी मेंटेन करना होगा, अपना क्वालिटी मेंटेन करना होगा, काम करना होगा, रिस्पेक्ट पाइएगा समाज में, और रिस्पेक्ट मिल रहा। वही मैंने आपको बोला, हेडमास्टर ऐसे ऐसे मोबाइल देखना नहीं आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, परेशान है बेचारे। अब उनको जैसे तैसे रख लिया था, वो कहते हैं कि हम क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता, इतना काम, कभी मैसेज आते रहता है, रोज इतना सारा नया नया सब आदेश आते रहता है, तो परेशान है। 1 साल में रिटायर होने वाले, देख रहे हैं कैसे किसी तरह रिटायर होकर मुक्ति पाए। तो क्योंकि भाई दिक्कत है कि ऐसे लोगों को ही रखा गया था, अब वो लोग काम कैसे करेंगे जिनको खुद अब कंप्यूटर चलाए नहीं, कंप्यूटर कहाँ से चला लेगा। तो ठीक है, मैं कहा कि मैंने आपको बताया था कि एक समय जब सरकार आई थी 2005 में, उस समय ऐसी व्यवस्था चौपट थी बिहार में, तो उनको रखा गया, लोगों को, ऐसे लोगों को नौकरी पर, एजुकेशन शिक्षा में, टीचर में, जो भी, क्योंकि यही लोग थे, इन्हीं से चलना था यहाँ का। लेकिन यहाँ तक कम से कम लाए। अब जो है मेरिट से, देखिए एग्जाम लिया और मेरिट से कैंडिडेट भरे गए हैं, लेकिन अभी भी हाल ये है कि 80% जो है नए में भी काम नहीं करना चाहते हैं। अभी भी जब तक, क्योंकि डंडा जब तक चल रहा है, के पाठक जी थे, अभी जो है दूसरे सिद्धार्थ सर हैं, तो डंडा वैसे ही चल रहा है तो काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये तो चलते रहता है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर
कि हमें इसमें और इन्वेस्टमेंट करना, अगर हम चाहते हैं कि हमारा राज्य डेवलप हो, हमारे लोग, हमारी सरकार अच्छे से चले, हमारा व्यवस्था से हर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे, तो उसके लिए हमें उनको उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। भाई अधिकारियों से आप काम लेना चाहते हैं तो उनको आपको फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, सबको सैलरी टाइम से देना पड़ेगा, जो जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो देना पड़ेगा, और जो इम्प्रूव करना है, जो फैसिलिटी उनके लायक नहीं मिल रहा है उनको, वो आपको इम्प्रूव करना होगा, तब वो मन लगा के काम करेंगे। तो इसमें खर्च होगा, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अधिकारी, हमारे जो भी एम्प्लॉई हैं सरकार के, वो अच्छे से काम करें, अच्छे से पढ़ाएं, टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं, प्रोफेसर्स अच्छे से पढ़ाएं, तो उसमें आपको खर्च करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं डेवलपमेंट तो उसमें खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वही यहाँ कहा जा रहा है। मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और स्टेट रिक्वायर्स हाई लेवल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अभी जो इतनी बातें मैंने आपको समझाई वही एक लाइन में कंक्लूजन में लिख दिया कि अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट, चाहे अपने देश का या राज्य का, तो आपको ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, हाई लेवल इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आप डेवलप कर पाइएगा राज्य को या देश। तो यही देखिए एक लाइन में कह दिया कि मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और स्टेट रिक्वायर्स हाई लेवल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो आपके जो ह्यूमन कैपिटल है, आपके जो डॉक्टर्स है, देखिए पहले आप कहते थे डॉक्टर्स देखते नहीं थे पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्यों नहीं? उनको फैसिलिटी भी नहीं रहता था, जैसे तैसे गर्मी में चैम्बर ठीक से नहीं है, टेबल ठीक से नहीं है, कोई ठीक से साफ सफाई नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है, तो उनका भी मन पेशेंट नहीं देखते थे, मन चिड़चिड़ा रहता था चीज़ों से, परेशानी से, तरह तरह। अभी देखिए अब सब जगह अच्छे हॉस्पिटल, सब जगह सुधार कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरह का फैसिलिटी, सब डॉक्टर्स को एसी लगा दिया है, पेशेंट्स के लिए सब जगह जो है फैन है, एग्जॉस्ट है, सब चीज़ लगा हुआ है, कूलर वगैरह जो भी चीज़ है, जहाँ बैठने का शेड है, ये सब बढ़िया से बैठने का, वेट करने का जगह, चैम्बर, डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो देखिए कितने बढ़िया से चल रहा है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल को पीछे छोड़ रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इतना बढ़िया से डॉक्टर देख रहे हैं, बड़े इज्जत से बात करते हैं पेशेंट से, अच्छे से उनसे पूछते हैं, उनको नहीं समझ में आता है तो ये नहीं कि चिढ़ जाए, उनको अच्छे से समझाते हैं, उनकी भाषा में समझाते हैं कि हाँ क्या है, कैसे इलाज है, क्या दवा खाना है, कैसे। आज वो वीआईपी नहीं बने हुए, पहले वीआईपी बने रहते थे, नहीं देखेंगे नहीं आए, लग रहा था कि पेशेंट कौन आ गया। अभी है कि वो वीआईपी नहीं, बल्कि एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह, एक अच्छे उसकी तरह काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल की तरह, और लोगों को अच्छे से जैसे कस्टमर की तरह डील करते हैं, अच्छे से वैसे डील कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आज लोग काफ़ी सुधार काम कर रहे हैं हर जगह। देखिए ट्रैफिक अपना, पहले कोई देखने वाला नहीं रहता था, जहाँ तहाँ जाम, हालांकि मनु महाराज ये सब का समय था, बहुत बढ़िया ट्रैफिक मैनेजमेंट था, अभी भी काफ़ी उस पर लगातार, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ाया था, दूसरे आईपीएस चेंज हुए थे तो थोड़ा सा गड़बड़ाया था, फिर अभी जो है ठीक है मैनेजमेंट, हर जगह है ट्रैफिक। और क्या है, ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं, वो बैठे रहेगा अपना जो है बीट पर वहाँ ऑफिस में, कोई देखने का मतलब नहीं, सड़क पर जो है कौन धूप में खड़ा होना चाहता है, कौन गर्मी में शोर शराबे में खड़ा होना चाहता है, टाइट किया है। तो देखिए अभी सब जगह जो है सब खड़ा रहेगा मैनेज करने के लिए, बीच में तो ज़्यादा टाइट था, अभी थोड़ा लूज हो गया है। तो कहने का मतलब सरकार हर जगह, चाहे वो पुलिस हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपको अगर चाहते हैं कि अच्छे से काम करें तो उनको आपको इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर करना पड़ेगा, और वो सरकार अभी कर रही है हमारी। वी हैव टू थिंक सीरियसली एंड मेक स्ट्रोंगर एम्पेयर। We have to think seriously and make stronger human resources। खैर यहाँ पर कुछ एक वर्ड का मिसमैच है, यहाँ पर जो है एम्पेरर क्या लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया कुछ वर्ड का, एक
क्या एम्पेरर नहीं है, एम्पावर है, ठीक है। एम्पावर, EMPOWER, वो टाइपिंग में वो ER हो गया है, OW की जगह ER हो जाएगा, एम्पावर, EMPOWER। तो यहाँ है कि वी हैव टू थिंक सीरियसली, एम्पावर एंड मेक स्ट्रॉन्गर ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हमें इसमें बहुत ही मजबूत सोचना है, सीरियसली सोचना है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे एम्पावर यानी और सशक्त कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर यानी और मजबूत बना सकते हैं। सशक्त करना मतलब उसका क्वालिटीज को इम्प्रूव करना, उसका कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, और स्ट्रॉन्गर यानी कि उसका कामकाज और उसको कैसे ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। तो इस पर हमें सीरियसली सोचना है और उस पर काम करना है, और सरकार देखिए कर रही है। ये पहले का लिखा हुआ है और आज सरकार इस पर कर रही है, तेजी से काम कर रही है। इफ द 3 प्राइमरी नेसेसिटीज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर प्रोवाइडेड टू द होल ऑफ पॉपुलेशन बाय वर्किंग हार्ड, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर खाली 3 जो जरूरी आवश्यकताएं हैं लोगों की, फूड खाना, क्लोथिंग कपड़े, एंड शेल्टर रहने की सुविधा आवास, अगर ये सभी टू द होल ऑफ पॉपुलेशन सभी जनता को अगर ये दे दिया जाए, और कैसे दे पाएंगे, बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करके ही दे पाएंगे। ऐसे मुश्किल है सबको देना ये सब सुविधा, लेकिन अगर हम कड़ी मेहनत करके ये 3 जरूरी आवश्यकताएं अगर सभी जनता को दे पाए, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो हमारी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आधा समस्या तो इसी से हमारा दूर हो जाएगा अगर हम सिर्फ कड़ी मेहनत करके सभी जनता को 3 बेसिक फैसिलिटीज जो है, प्राइमरी नेसेसिटीज, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये प्रोवाइड कर सकते। तो इसी के लिए जो मैंने अभी कहा कि सबको हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे ट्रैफिक ऑफिसर हो, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, क्लर्क्स हों, जो भी हों, हम सबको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने यहाँ के लोगों को ये बेसिक नेसेसिटीज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। देयर इज़ नीड टू प्रोवाइड अटेंशन, there is need to provide attention to the health of population for making them stronger। हमें जरूरत है कि हम अपनी जनता के स्वास्थ्य को सुधारें ताकि वो और मजबूत हो सके शारीरिक रूप से। तो देखिए उसके लिए मैंने आपको कहा भी कि हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको बहुत सारा जो सप्लीमेंट्स होता है, कुछ दवाएं होती हैं जो जैसे आयरन, विटामिन, ये सब वो दिया जा रहा है ताकि वो हेल्दी हो सके। तो इस पर भी काम किया जा रहा है। मैंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर अभी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन है और स्वास्थ्य है, इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो यही यहाँ पर कहा है कि देयर इज नीड टू प्रोवाइड अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन फॉर मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर, यानी जो आम जनता है हमारी, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि वो स्वस्थ रहे, मजबूत हो सके और अपना काम अच्छे से कर सके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑलवेज सेड हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। इस परिप्रेक्ष्य में देखिए हमेशा से बहुत पुरानी कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, आपको अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छा काम करेंगे। बीमार आदमी है जो खुद चिड़चिड़ा है, उसको विचार भी सब जो है आते हैं उल्टे सीधे आते हैं, उसके दिमाग में सारी उल्टी सीधी बातें चलती हैं और वो किसी का बुरा करना चाहता है, वो किसी के बारे में कड़वी बात कहना चाहता है, क्योंकि वो खुद परेशान है, वो खुद बीमार है, वो खुद चिड़चिड़ाया हुआ है, तो वो अच्छा नहीं सोच सकता है, मजबूरी है उसकी। तो इसीलिए अगर एक स्वस्थ आदमी है तो वो उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छी बातें सोचेगा, अच्छा काम करेगा, किसी का फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, इसलिए हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी।
These four elements altogether affect the people. They can be enriched through the medium of education. तो ये चार चीजें कहा जा रहा है कि फूड, क्लोथ, शेल्टर और हेल्थ, इन चार चीजों को, ये चार चीजें ही लोगों को प्रभावित करती है। खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं, कपड़े हैं कि नहीं अच्छे ठीक पहनने के लिए, रहने की सुविधा है कि नहीं, और उसका स्वास्थ्य कैसा है। इन्हीं चार चीजों से कोई व्यक्ति प्रभावित, हम सब इन्हीं चार चीजों से प्रभावित होते हैं। एनरिच मतलब होता है उसको, और देखिए, एनरिच मतलब होता है टू मेक रिच। अब रिच का मतलब अलग अलग सेंस में होता है, अगर पैसे के भी सेंस में होता है, लेकिन अगर आदमी की बात करें तो उसका क्वालिटीज इंप्रूव करने की बात होता है, या बहुत सारी चीजों में क्वालिटी इंप्रूव करना एनरिच होता है। ठीक है, तो दे कैन बी एनरिच्ड थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो ये जो चार चीजें हैं, ये हम एजुकेशन के रास्ते, एजुकेशन के द्वारा हम इनको और बढ़िया बना सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं, मतलब और बेहतर बनाना और अच्छा बनाना। इट इज एन एबल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट and this indicator contributes in capital formation which will facilitate economic development worldwide। यानी कहा जा रहा है कि इसीलिए एजुकेशन जो है वो कहीं का भी एक बढ़िया इंडिकेटर है कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। यानी किसी जगह पर एजुकेशन कैसा है, क्या लेवल है एजुकेशन का, वो आपको बता देता है कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा वहाँ देखिए एजुकेशन अच्छा हो, जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है वहाँ एजुकेशन भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, जहाँ आप पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जहाँ पिछड़ा हुआ है, गांव देहात, छोटे मोटे शहर, वहाँ क्या है, एजुकेशन है अच्छा नहीं है, जैसे तैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है वहाँ। तो आप कहाँ, कहीं जगह पर एजुकेशन कैसा है, उससे आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। और क्योंकि दिस इंडिकेटर कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, भाई एजुकेशन से ही हमारा ह्यूमन कैपिटल बनता है। ह्यूमन कैपिटल आपने देखा किससे बनता है, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और हेल्थ से। तो इनसे ही जो है हमारा ये इंडिकेटर होता है, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन, विच विल फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि ये बताएगा, कहीं भी एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है लोगों का, तो बताएगा कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, और जहाँ एजुकेशन ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल गिव्स बर्थ टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब कहा जा रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल गिव्स बर्थ टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी जो कुशल ह्यूमन कैपिटल है, जो अच्छे से काम करने वाले ह्यूमन कैपिटल है, यानी अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे लॉयर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे प्लम्बर्स, अच्छे इलेक्ट्रीशियन, यानी जो भी इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल है, दे गिव बर्थ टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इनसे ही आगे नए नए रोजगार पैदा होते हैं। एक अच्छा डॉक्टर हो, देखिए डॉक्टर होता है, अगर एक बढ़िया डॉक्टर होता है, क्या होता है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा पढ़ लिख के आया, नया नया MBBS करके आया है, वो अपना शुरू करता है प्रैक्टिस, तो क्या है, धीरे धीरे जब अच्छा डॉक्टर अगर वो होता है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, उसका पॉपुलैरिटी बढ़ते जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उसका डेवलप होते चला जाता है, वो अपना हॉस्पिटल खोल लेता है, बड़ा हॉस्पिटल हो जाता है, और उस हॉस्पिटल में देखिए कितने लोगों को नौकरी मिलता है। आप देख लीजिए यहाँ कितने डॉक्टरों सबका हॉस्पिटल चल रहा है बड़ा बड़ा, कितने लोग उसमें काम करते हैं।
तो वो भी तो डॉक्टर कभी शुरू किया होगा अपना प्रैक्टिस, लेकिन अच्छा डॉक्टर था, पढ़ा लिखा हुआ था, अच्छे से सीखा था, पेशेंट्स को अच्छे से देखा, कड़ी मेहनत किया, तो बड़े बड़े आज हॉस्पिटल सेटअप कर लिए हैं। उसमें देखिए इतने पेशेंट आते हैं, उनको देखने के लिए इतने तरह के लोग रहते हैं, तो कितने लोग हॉस्पिटल में लगे होते हैं काम करने, बहुत से लोग को उनसे रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है। तो यही कहा जा रहा है कि इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल गिव्स बर्थ टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए कोई बिजनेसमैन ही है, बिजनेस करता है, अच्छे से अपना डेवलप कर लेता है बिजनेस, तो कितने लोग उसके यहाँ नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। इसी तरह जितने भी लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, अगर वो अच्छे से काम करें, डेवलप करें, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को रोजगार पर रख पाएंगे, दे पाएंगे रोजगार तरह तरह के लोगों को। तो यही कहा जा रहा है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो इफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल को हमें बढ़ाना होगा, और ह्यूमन कैपिटल अगर होगा तो रोजगार बढ़ेंगे। टुडे इंडिया इज काउंटेड अमंग द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहा जा रहा है, टुडे इंडिया इज काउंटेड अमंग द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज इंडिया दुनिया के टॉप कंट्रीज में आता है, जहां के लोग इतने क्वालिफाइड होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, उनको हर जगह दुनिया में नौकरी मिल रही है। देखिए आज देखिए, आप देख लीजिए पूरे दुनिया में हर जगह यहाँ के लोग जा रहे हैं काम कर, कोई देश बचा नहीं रह गया है, हर देश में जा रहे हैं। आखिर इनको हर जगह नौकरी कैसे मिल रही है, क्योंकि अच्छा ये काम करने वाले, अच्छा इनको नॉलेज है और कॉम्पिटिटिव ढंग से काम करते हैं, मन लगा के मेहनत से काम करते हैं, अच्छा कंपटीशन की फीलिंग से काम करते हैं, इसलिए इनको हर देश में नौकरी मिल रहा है। देखिए पूरी दुनिया में लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। इंडियन इंजीनियर्स आर इंटेलिजेंट एंड इफिशिएंट। इंडिया के इंजीनियर्स इंटेलिजेंट हैं, इफिशिएंट हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर इज मोर इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल विद इन द कंट्री एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड इन दिस सेक्टर। तो देखिए इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, बढ़िया नॉलेज वाले हैं, बढ़िया एफिशिएंसी वाले हैं, काम कर रहे हैं, तो देखिए आज बाहर से यहाँ सभी विदेशी कंपनियां यहाँ के अपना यहाँ फैक्ट्री लगा रही है, ऑफिस बना रही है, इंडस्ट्री लगा रही है। तो यहाँ क्या है, फॉरेन कैपिटल आ रहा है बाहर से हमारे देश में, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, और उससे रोजगार पैदा हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ये सब से जुड़ा हुआ फील्ड, तो विदेशी कंपनियां आ रही हैं यहाँ, तरह तरह के जो है, मैंने आपको जैसे बताया, कल ही बताया कि डाइकिन है, जापान की कंपनी है, एसी की टॉप कंपनी है वर्ल्ड की, और यहाँ राजस्थान में नीमराना में प्लांट लगाई, गुजरात में प्लांट लगाई, हिटाची कंपनी है जब यहाँ प्लांट लगाई। सभी कंपनियां यहाँ अपने फैक्ट्रीज बना रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के इंजीनियर अच्छे नॉलेज वाले हैं, काम करने वाले हैं तेज तरह। तो जो फॉरेन, मैंने आपको बताया कि सारे फॉरेन कंपनीज अब यहीं उनका काम हो रहा है, यहीं से प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ वो प्रोडक्शन या कैसे हो रहा है, यहाँ अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पैसा लगा रहे हैं, यहाँ अपना आदमी भी ला रहे हैं, वहाँ से मैन पावर ला रहे हैं, अच्छे टेक्निकल यहाँ सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए लोगों को, अच्छी मशीनें यहाँ ला रहे हैं, नया नया लेटेस्ट। तो यहाँ फॉरेन कैपिटल हमारे देश में आ रहा है, और रोजगार के मौके यहाँ नए नए रोजगार बन रहे हैं। बेंगलोर, देखिए आगे, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली एटसेट्रा आर सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो शहर हैं बड़े बड़े, ये सेंटर्स आज बन गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, where thousands of people get employment every year, जहां हजारों लाखों लोगों को हर साल रोजगार मिलता है। देखिए कितने लोग यहाँ जॉब करते हैं, बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में। तो इसी की वजह से इनको नौकरी मिल रहा है, क्योंकि वहाँ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या और तरह के जो है जॉब्स, वहाँ उसका काम हो रहा है। सो ये टॉपिक हमने देखा, रोल ऑफ एजुकेशन इन
सर्विस सेक्टर। एक सर्विस सेक्टर जो अभी हमने इतने लोगों की बात की है, पूरा सर्विस सेक्टर है, जो अपनी सर्विस देते हैं, जो काम करते हैं कुछ। तो सर्विस सेक्टर को डेवलप करने में एजुकेशन का क्या रोल है, अभी हमने इस टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। और बिहार में तो देखिए अभी इसी में क्रांति चल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसीलिए चल रही है ताकि हम चाहते हैं कि हमारा सर्विस सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम नहीं डेवलप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं। तो हम इंडस्ट्री कहाँ से बनाएंगे, क्या लगाएंगे? तो इसीलिए हम कम से कम सर्विस सेक्टर पर फोकस, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन है बहुत, तो पॉपुलेशन को आप यूज कर सकते हैं, उसको डेवलप ह्यूमन कैपिटल की तरह कर सकते हैं ताकि उससे हम काम ले सके। सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप होगा, उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द करेंट टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑन सर्विस सेक्टर। आज के समय में जो एक स्लो डाउन आ गया पिछले कुछ सालों से, यानी इकोनॉमी स्लो हो गई। स्लो डाउन का मतलब धीमा हो जाना, उसकी जो चलने की गति है, वो चलने की स्पीड है, वो स्लो हो गई, धीमी हो गई। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑन सर्विस सेक्टर। तो ये जो आर्थिक मंदी आई है दुनिया में, उसका सर्विस सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको अब हम लोग समझेंगे। ये दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी आई है, स्लो डाउन हो गया, और खासकर कोरोना उसके बाद हो गया उसी के बीच, तो और वो पीछे लेके चला गया। तो इसका सर्विस सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री और अ स्टेट। किसी भी देश और राज्य, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लगातार होने वाला चीज है, वो होते रहता है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये लगातार होने वाला चीज। ऐसा नहीं कि आज हो रहा है कल रुका हुआ है, ये लगातार होने वाला है, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, जो भी है, लेकिन लगातार होता है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीजेस। जनरली ये होता है, समय होने के साथ डेवलपमेंट बढ़ता है। Disappearance of old things from the economy is its indication. इकोनॉमी से पुरानी चीजों का गायब हो जाना ये बताता है। देखिए डेवलपमेंट हुआ तो क्या है, आज कोई कैसेट से म्यूजिक सुनता है, आज कोई 2-in-1 रखता है, कैसेट का जमाना गया। जो पुराने लोग होंगे कहीं कहीं वो रखे हुए होंगे, नहीं तो आज क्या है, आज तो सीडी डीवीडी भी लोग भूल गए। अब आज तो जो है आपका MP3 और ऑनलाइन म्यूजिक का जमाना है, मोबाइल में सुन लीजिए, अब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आज के देखिए एक समय क्या है, हम लोग कैसेट खरीदा करते थे महंगे। मैंने 150-150 रुपए के कैसेट, जब 25 रुपए में यहाँ का आता था इंग्लिश सॉन्ग्स का कैसेट, बहुत महंगा बिकता था वेस्टर्न म्यूजिक। यहाँ के कैसेट जब 25 रुपए 30 रुपए के मिलते थे, तब उस समय 150-150 रुपए का बिकता था कैसेट, आज से 25-30 साल पहले। तो कैसेट्स हम लोग खरीदा करते थे म्यूजिक सुनने के लिए। बाद में सीडी का जमाना है, सीडी खरीदा करते थे। डीवीडी आया, अब जो है डीवीडी भी चला गया, यूएसबी पेन ड्राइव आया, और अब पेन ड्राइव भी नहीं, अब ऑनलाइन हो गया सीधा। आज आप कहीं खोजिएगा सीडी प्लेयर नहीं मिलेगा, आज आप खोजिएगा कैसेट प्लेयर तो आपको खैर मिलेगा ही नहीं, मुश्किल। तो कहने का मतलब पुरानी चीजें गायब होती जा रही हैं। आज देखिए पुराना टीवी, अब सब जगह देखिए क्या है, एलईडी टीवी सब जगह। अब आपको पुराना बड़ा वाला टीवी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्यूब वो वाला। हाँ हाँ हाँ, तो वो पिक्चर ट्यूब वाला टीवी जो है अब आपको नहीं मिलता है, कहीं देखने को नहीं, चाहे जैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, किसी के आपको नहीं देखने को मिलेगा, गायब हो गया है। तो आज सबके यहाँ आपको दिख जाएगा एलईडी टीवी जो। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है। तो पुरानी चीज आज देखिए, अब जो है आपको स्कूटर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सब जगह बाइक है, स्कूटी है। स्कूटर कभी आउटडेटेड हो गए। तो
कहने का मतलब है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है समय के साथ पुरानी चीजें गायब होती चली। देखिए मोबाइल, पहले कीपैड वाले मोबाइल आए थे, तब आते थे कीपैड वाले मोबाइल आते थे, कीपैड में भी बहुत तरह के आए। उसके बाद आया टच फोन, आया स्मार्टफोन का टच फोन। पहले तो स्मार्टफोन आया, कीपैड में ही स्मार्ट रहता था कुछ फीचर्स। उसके बाद टच फोन का समय। आप टच फोन आए हुए देखिए, टच फोन कब आया था? 2010-11 में कहिए, 10-11 नहीं, सॉरी, आप कहिए कि 2007-8 में, 6-7 में, 7-8 में उसके बाद टच फोन आए थे। तब पहले मॉडल शुरुआती आए थे मोबाइल टच फोन। अब जो है देखिए, अब ऐसा हो गया है, अब टच फोन तो छोड़िए, बड़े बड़े टैब और क्या क्या आ गए हैं। अब वो पुराने फोन दिखते ही नहीं है, रखे हुए मेरे पास कई पड़े हुए हैं। तो वो चीजें गायब हो गई थी क्योंकि डेवलपमेंट के साथ समय बदल गया। आज एंड्रॉइड फोन आ गया, सबके हाथ में एंड्रॉइड है, बड़ा बड़ा टच फोन, ये सब है एंड्रॉइड फोन जो है। तो यही कहा जा रहा है कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड थिंग्स फ्रॉम इकोनॉमी इज इट्स इंडिकेशन। ये बताता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। विद द चेंज इन टाइम डिमांड ऑफ अ पर्सन चेंजेस। एक अलग बड़ी अच्छी बात है। विद द चेंज इन टाइम डिमांड ऑफ अ पर्सन चेंजेस, यानी समय जैसे जैसे बढ़ता है, समय बदलता है, एक आदमी की जो जरूरत है वो बदलती चली जाती है। देखिए आगे लिखा है, पर्सन फॉल्स प्रे टू फैशन। कोई भी व्यक्ति फैशन का शिकार हो जाता है। फैशन का शिकार है आज हर व्यक्ति। देखिए 2 साल हुआ नहीं, उसका मन करने लगता है, अरे नया नया फोन आ गया, नया फोन ले लेता हूँ, बदल लेता हूँ। कपड़े 2 साल हो गया, अरे अब दूसरे कपड़े खरीद, नया फैशन आ गया, अभी सब कपड़े पहनते हैं। फैशन का शिकार है आदमी आज। समय के साथ उसकी जरूरतें बदल गई है, तेजी से बदल रही हैं। हम अभी भी पुराने फैशन वाले आदमी हैं, जो मोबाइल मेरा पिछले 5-6 साल से चल रहा है और अभी भी उसको चला रहे हैं। लगता है कि 2-3 साल और आगे अभी चलाएंगे ही उसको। नहीं तो लोग क्या है, हाँ वही हम कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो 5 साल, नहीं तो 5 साल, आज का यूथ को देख लीजिए, चला लेगा 5 साल मोबाइल, संभव ही नहीं। 2 से 3 साल हार्डली। नए फोन आ जाते हैं, नए टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जा रही है। 2G था, 3G था, 4G, 5G, अब 6G। तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, उसके साथ साथ फैसिलिटीज चेंज हो जाती है। तो यही कहा जा रहा है कि पर्सन फॉल्स प्रे टू फैशन। आदमी फैशन का शिकार हो जाता है। आफ्टर 1991 इन इंडिया, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, मैसिव चेंज वाज ऑब्जर्व। 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसके बाद बहुत मैसिव, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला लोगों को। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग द ट्रेडिंग कंट्रीज। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक होता है, यानी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है इंडस्ट्रीज के बारे में, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको, उनके बारे में नियम कानून जो सरकार बनाती है, सोचती है, एक सोच रखती है, एक नीति रखती है, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी समय समय पर सरकार नई बनाती रहती है। ठीक है, कई बार 3-4 साल पर भी बन जाता है, कई बार 5-10 साल के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज होता है। ये बताता है कि वहाँ इंडस्ट्रीज के बारे में नियम कानून होते हैं कि इंडस्ट्रीज कैसे, कौन लगा सकता है, कौन, उसके बारे में हर तरह के नियम कानून। तो वही कहा जा रहा है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लिबरलाइजेशन मैंने समझाया था आपको, यानी सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया, हर चीज को आसान कर दिया गया।
1991 में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया, यानी इंडस्ट्री लगाने के नियम कानूनों को बड़ा सरल कर दिया गया। अब कोई भी बाहर से भी विदेशी आके यहाँ कंपनी खोल सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, या हम किसी के साथ मिल के फैक्ट्रियां, मतलब जो भी उसके बहुत सारे नियम कानून होते हैं बहुत सरल बना दिया गया। उससे क्या हुआ देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग द ट्रेडिंग कंट्रीज। जो ट्रेड करने वाले कंट्रीज थे उनके बीच में इससे कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि भाई आपने क्या किया, मैंने बताया आपको कि हमारी सरकार ने कानून सब सरल कर दिए। अब हर यहाँ विदेशी कंपनी को यहाँ आना फ्री हो गया, कोई भी आके यहाँ व्यापार कर सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, अपना प्रोडक्शन कर सकता है, कोई कहीं भी बेच सकता है सामान, यहाँ आके बेच सकता है, हमारी यहाँ की कंपनी बाहर जाके बेच सकती है। तो इससे क्या हुआ, सभी देश की कंपनी हर जगह व्यापार करने लग गए, तो उनमें कंपटीशन बढ़ गया। देखिए याद करिए, मॉडर्न इंडिया में जब हमारे यहाँ नए नए जब यूरोपियन कंपनीज आए थे, फ्रेंच, ब्रिटिश, डेनमार्क के, पोर्चुगल के, स्पेन के, सब जगह के आए थे, उनमें क्या था, आपस में कंपटीशन, इसके चलते आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश और फ्रेंच ये रह गए थे, फिर फ्रेंच को भी साइड कर दिया ब्रिटिश ने पूरा कब्जा कर लिया। तो उनके बीच में भी व्यापार करने के लिए कंपटीशन था। वैसे ही आज हो रहा है, जब हमने हर देश को फ्री कर दिया कि कोई भी देश हमारे यहाँ आ सकता है और हम कहीं भी देश, पूरे दुनिया में ये हुआ, तो उससे हर दुनिया के सभी कंपनियों में कंपटीशन हो गया। पहले एक कंपनी का सामान सिर्फ मिलता था, आज आप कोई भी चीज लेने जाएंगे आपको 20-30 कंपनी मिल जाएगा उसका। ठीक है, पहले आप आज से 15-20 साल पहले जाते एसी खरीदने, 1-2 कंपनी का मिलता, आज आपको सभी देश की कंपनियां यहां देखिए, मैंने आपको गिना दूं, डाइकिन है जापान की, हिटाची है जापान की, सैमसंग है कोरिया, एलजी है कोरिया, ओ जनरल है अमेरिका का, हायर है चाइना का, वर्लपूल है ये कोरिया का है, वोल्टास है इंडिया का है, ब्लू स्टार है इंडिया का है। हर देश की कंपनी यहाँ है। ये तो मैंने कुछ कंपनी आपको अभी गिनाया, बहुत और कंपनी है। कैरियर को देखिए भूल गए, कैरियर है अमेरिका की लीडिंग कंपनी है, वो भी है एसी के मामले में। लॉयड है इंग्लैंड की कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनियां, आज आप खरीदने जाइए आपको इतने ब्रांड्स के मिल जाएं, कोई भी चीज खरीदने जाइए, क्योंकि हर कंपनी को हमने फ्री कर दिया कि आओ बेचो, और हमारी कंपनियां भी बाहर जाके हर देश में कर रही हैं। इससे क्या है, आपस में देशों में कंपटीशन बढ़ गया। पीपल इजिली स्टार्टेड गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन गुड्स। देखिए आज लोगों को विदेशी सामान मिलना बहुत आसान हो गया। विदेशी सामान मिलना आसान, आप जानते हैं एक समय था आज से 20-30 साल पहले, अगर विदेशी कंपनी का आप सामान खरीदने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। आज आप जाके दुकान में फट से खरीद लेते हैं किसी भी विदेशी कंपनी का, कोई भी चीज अमेजन से ऑर्डर किए पहुंच गया। यहीं का नहीं, अगर वो इंपोर्ट भी होके आ रहा है वो भी हमको घर में आके दे जा रहा है, कोई नहीं पूछने वाला है कौन है क्या। एक समय था उसके लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था, तब आप खरीद सकते थे, कंट्रोल होता था सब। तो ये लिबरलाइजेशन हुआ, उससे आज क्या हुआ, आज हमें फॉरेन गुड्स मिलना आसान हो गया। पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग क्वालिटेटिव कंपैरिजन, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कंपैरिजन कर दीजिए, कंपेनियन नहीं है, वो आर और आई मिलके एन हो गया है। कंपैरिजन ऑफ द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइसेस। क्या कह रहा है कि पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग क्वालिटेटिव कंपैरिजन ऑफ गुड्स ऑन बेसिस ऑफ देयर, यानी आज हमको मौका मिला, जब इतनी कंपनियां आ रही हैं
तो आज हमको अगर एसी खरीदना है तो हम आज कंपेयर कर सकते हैं उसका क्वालिटी उसके दाम के हिसाब से कि अच्छा एसी किसका ले, हम डाइकिन का लें कि कैरियर का लें कि जनरल का लें कि हिटाची का लें कि ओ जनरल का लें कि वोल्टास का लें, कौन कूलिंग ज़्यादा दे रहा है, किसका प्राइस कम है, कौन बिजली ज़्यादा खा रहा है, किसका गारंटी ज़्यादा है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं और हमको जो ठीक लगे वो हम खरीद सकते हैं। पहले क्या था, जो मिल रहा है वही खरीदिए, एक मिल रहा है वही खरीदना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे वो बिजली बहुत ज़्यादा खाता हो, चाहे वो महंगा बहुत हो, आपको वही खरीदना है क्योंकि वही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज जो है, आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज आपको ऑनलाइन ही दिखा देता है, अमेजन पर ही दिखा देगा कंपेयर करके 4-5 प्रोडक्ट को, और उसका सारा फीचर्स लाइन से टेबल में दिखा देगा। इसका सर्विस कैसा है, इसका गारंटी कितना है, इसका पावर कितना है, इसका कूलिंग कितना है, वो सारे आप कोई प्रोडक्ट देखिएगा अपने आप उसमें कई प्रोडक्ट्स का आपको कंपैरिजन दिखा देगा। तो आज ये लोगों के लिए हो पाया कि आज हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी हम समझदारी से अपना फैसला ले रहे हैं कि हमें क्या लेना है, क्या खरीदना है, हम अपने पैसे का सही वैल्यू ले सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्टेड गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, यानी इकोनॉमी के जो हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ये सारे सेक्टर्स को जो है ग्लोबलाइजेशन से फायदा होना शुरू हुआ। देखिए फायदा होना शुरू हुआ ना, एग्रीकल्चर को, किसान ट्रैक्टर खरीदता था, पहले यहाँ जो ट्रैक्टर बिकते थे एक आध कंपनी के, वही खाली फोर्ड का बिकता था, पुराना मैंने देखा था। अब देखिए इतने कंपनी के ट्रैक्टर्स आ गए, जिसको किसान को जो बेहतर लग रहा है। आज कार देखिए, इतना कौन कौन कंपनी का कार सड़क पर चल रहा है पता नहीं चलता है। पहले जो एक ही दो कंपनी रहता था कि मारुति है, नहीं तो जो बहुत रहते थे वो फोर्ड वगैरह लेते थे, 2-3 ही कंपनी रहता था, मारुति, फिर आए hyundai और बहुत, आज मॉरिस गैराज, एमजी, तो निसान, क्या क्या है, फिर डैट्सन, मतलब बहुत सारी कंपनी है, क्या क्या बताएं, जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कौन कंपनी, इतने तरह की आज 30-40 कंपनी की गाड़ियां बिक रही हैं, 10-15 तो हमारे यहाँ की ही कंपनी है और फिर बाकी बाहर की है। तो हर इतने तरह के, तो हर सेक्टर आज देखिए, तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें, वहाँ किसानों को, चाहे वो उनको देखिए ट्रैक्टर खरीदना हो, मोटर पंप खरीदना हो, दवा खरीदना हो, बीज खरीदना हो, आज दुनिया भर की कंपनियां यहाँ बीज, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं, खाद बेच रही हैं, हर तरह का जो भी चीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत है, दवाएं, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात, आज मशीन से यहाँ देख लीजिए, हर जगह की मशीनें, यहाँ हर देश से मशीनें बन के आ रही हैं, उनसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। आज देखिए हम लोग, मान लीजिए एक हम कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा, प्रिंटर्स का ही बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन हमारा काम करता है, प्रिंट करता है, प्रिंटर आज देखिए हम कहाँ कहाँ, ब्रदर है कंपनी जापान की, एचपी है कंपनी अमेरिका की, सैमसंग है कंपनी कोरिया की, एप्सन है कंपनी इधर ही की है कहीं। तो आज कितने, कैनन है, मतलब गिनने लग जाएंगे, बहुत कंपनी है, एचपी, कैनन, ब्रदर, सैमसंग और बहुत सारे। तो इतने कंपनीज का अवेलेबल है, हमको जो मन है हम खरीद रहे हैं। ब्रदर का आज बहुत कॉम्पिटिटिव और अच्छा परफॉर्मेंस है, ब्रदर का हमने ले लिया है, जापानीज कंपनी है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। मोबाइल के देख, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विसेज में देख लीजिए, लोग इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह की चीज़ें हैं, जैसे आज आईटी के फील्ड में देखिए, मोबाइल, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, कितने कंपनी के मोबाइल्स बिक रहे हैं, टैबलेट्स बिक रहे हैं, कंप्यूटर्स बिक रहे हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी गैजेट्स हैं, एक्सेसरीज हैं। तो हर सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, दुनिया भर से मशीनें मंगा रहे हैं। तो हर सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ है। तो हाँ, बेनिफिट फ्रॉम
ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों चीजें जो हुई 1991 में, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इससे हमारे इकोनॉमी के हर सेक्टर को फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। नाउ पीपल गॉट द आइडिया टू लुक आउट फॉर जॉब्स इन अदर कंट्रीज। तो आज इसी के कारण है हमारे लोगों को, हमारे युवा को है कि किसी भी देश में वो काम खोजते हैं कि कहाँ किस देश में काम करने का अपॉर्चुनिटी है, वहां हम जा रहे हैं काम करने। हर देश में जा रहा है काम करने, वो नौकरी की तलाश, जहां दिख रहा है उसको वहां जा रहा है नौकरी करने। Although there is one group of economic thinkers who has the view that life of common people has become difficult due to globalization, privatization and liberalization, and rich persons and countries started dominating the economy. यहां कहा जा रहा है कि एक ग्रुप ऐसा भी है हमारे इकोनॉमिक थिंकर्स का, यानी जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं, थिंकर्स हैं, विचारक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, तो उनका एक ऐसा भी ग्रुप है जो ये सोचता है, जो ये मानता है कि इनसे हमारे, यानी ग्लोबलाइजेशन से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से हमारे आम जनता की जीवन और मुश्किल हो गई है, और जो अमीर लोग हैं, जो अमीर देश हैं, वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो ऐसा भी एक ग्रुप है लोगों का, विचारक जो पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये सोचता है कि नहीं, ये सब से हमारा जीवन और मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई अब हमें बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता है, पहले इतना मेहनत नहीं था, पहले इतना कंपटीशन नहीं था, नौकरी कहीं मिल जाती थी तो हम आराम से अपना नौकरी करते रहते थे, कोई टेंशन नहीं होता था। आज जो है हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन हर फील्ड में हो गया है। आप अच्छे से काम नहीं करिएगा तो आपको निकाल देगा, आप अच्छा बनाइएगा नहीं, सामान आपका बिकेगा नहीं। पहले तो हम ही बनाते थे, जो सबको आता था हमारा ही खरीदता था। आज इतनी कंपनियां आ गई हैं कि आप अच्छा नहीं बनाइएगा तो दूसरे का खरीद लेगा लोग। तो ये भी सही बात है कि नेचुरल बात है, कंपटीशन जहां बढ़ेगा तो लोगों को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो फायदा लोगों को, देखिए एक तरफ कस्टमर को फायदा हुआ है, अगर एक कस्टमर की तरह आप लोग को देखते हैं किसी को कि मैं एक कस्टमर हूं, तो मुझे ये फायदा हुआ है कि मुझे उतना ही पैसा लगा के बहुत बेहतर सामान मिल जा रहा है आज के डेट। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका प्रोड्यूसर है, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, उसका प्रॉफिट कम हो गया है, आज उसको उतना मार्जिन नहीं मिल रहा है जितना पहले वो प्रॉफिट कमा लेता था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो गया है, हर कोई बेच रहा है, हमसे कम दाम पे मिल रहा है, अगर वो नहीं बेचेगा कम दाम पे तो दूसरा का बिकना शुरू हो जाएगा। तो दोनों हैं, अगर कुछ फायदे भी हुए हैं तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नुकसान भी हुआ है, जीवन में तनाव बहुत हो गया है हर किसी के, इतना टेंशन है लाइफ में, इतना हर जगह कंपटीशन है कि समाज में तनाव बहुत हो गया है, परिवार में तनाव बहुत हो गया है, जीवन मुश्किल हो गया आम आदमी का, उसको बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। हर कोई खोजता है कि हम पैसा दे तो आपसे पूरा मेहनत लें, तो काम करा रहा है आदमी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो गई है इनसे, और हम पर जो रिच लोग हैं, जो रिच कंट्रीज है, वो हावी हो रहा है। आज आदमी पैसे के कारण मजबूर हो गया है, अब जो नौकरी दे रहा है उसके आगे मजबूर है, जो कह रहा है उसको करने के लिए क्या करेगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि टीचर्स की बात करें, अगर टीचर्स की बात करें तो मैंने ये कहा कि भाई अब आप सरकार के गुलाम हो गए, अब जो सरकार कहेगा करते रहिए, जैसे नचा रहा वैसे नाचना पड़ेगा आपको, क्या करिएगा। अब दिन हो रात हो काम करा रहा है, काम कर रहा है टीचर, तो जिंदगी उसकी मुश्किल तो हुई है, सही बात है। पहले रिलैक्स रहता था, ना स्कूल में काम, घर पर तो अपना संबंधियों के साथ गप कर रहे हैं दिन, लेकिन आज वैसा नहीं है आज। लेकिन हाँ, फायदा भी है कि आपको, पहले लोग सैलरी के लिए मुंह ताकते रहते थे, कब सैलरी आएगा, कब सैलरी आएगा, कौन महीना में सैलरी आएगा।
अभी है कि आपको सैलरी अपना टाइम पर आ जा रहा है अकाउंट में सीधे, किसी के पीछे दौड़ना नहीं है, किसी को रिश्वत नहीं देना कि अरे भैया सैलरी भेज दीजिए, क्लियर करवा दीजिए, अपने अकाउंट में आपको टाइम पर आ जा रहा है। तो कुछ प्लस है, कुछ माइनस भी है। तो यही कहा जा रहा है कि रिच पर्सन्स एंड रिच कंट्रीज स्टार्टेड डोमिनेटिंग द इकोनॉमी। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन दिस क्राइसिस दैट role of trade union has become negligible in labor market because of globalization and liberalization। आज ये ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के कारण ट्रेड यूनियन का रोल खत्म। पहले क्या ट्रेड यूनियन का बड़ा ये रहता था, जला रहता था कि भाई ट्रेड यूनियन है, जो हड़ताल कर देंगे, नहीं मानेंगे। यूनियन वाले तो अपने आप को जो है अधिकारी और मंत्री समझते थे, ये हम यूनियन से हैं, काम नहीं होगा। कोई भी जहां भी यूनियंस, आज इनका अस्तित्व खत्म हो गया, कोई पूछने वाला, क्योंकि अब भाई सब अपने अपनी नौकरी के चक्कर में, काम नहीं करेगा हटा देगा, कोई कानून नहीं है उसके लिए। आप काम नहीं कीजिएगा आपको हटा देगा, यूनियन कुछ नहीं कर पाए। तो अपना काम कीजिए और नौकरी बचाइए। तो आज इससे ट्रेड यूनियन का कल्चर जरूर खत्म हुआ है। एंड कॉमन पीपल रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर, और आम आदमी जो है वो चुपचाप तमाशा देख रहा है। आम आदमी चुपचाप तमाशा देख रहा है। द माइंड सेट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज चेंजिंग स्लोली एंड दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग द एडवांटेजेस ऑफ दिस। तो लोग जो ऐसा कहते हैं कि हाँ बहुत ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमारा ज़िंदगी मुश्किल हो गया है, ऐसी जो नेगेटिव बातें कहने वाले हैं उनका माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा है। और वो जो इन नीतियों से जो हमें फ़ायदे हो रहे हैं उसको मानने लगे, एक्नॉलेज करने लगे। दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग द एडवांटेजेस ऑफ दिस पॉलिसी। ये जो नीतियां उस समय लिया गया था 91 में, उससे जो आज फायदे हो रहे हैं लोगों को, उसको वो स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं। जो लोग कल तक कहते थे कि नहीं इसके नुकसान हुआ है, हमारा ज़िंदगी मुश्किल हो गया है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, उन लोगों का भी सोच धीरे धीरे बदल रहा है। देयर माइंडसेट इज स्लोली चेंजिंग and they have started acknowledging the advantages of these policies. Scientists of Indian origin got the opportunities to work in developed countries like USA, Switzerland, France, Russia, Japan, China, etc. यानी भारत के जो साइंटिस्ट थे, मतलब जो भी लोग भारत में रिसर्च वगैरह करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, उनको डेवलप्ड कंट्रीज में काम करने का और ज़्यादा मौका मिला, जैसे यूएसए में, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, रशिया में, जापान में, चाइना में। इन देशों में जाके वो देखिए आज बड़े बड़े पोस्ट पर हैं भारत के लोग, हर जगह, चाहे यूनिवर्सिटी में है सीनियर प्रोफेसर या साइंटिस्ट, रिसर्च फेलो, सब हर देश में काम कर रहे हैं। It was not possible increasing the number of scientists of technical sector in the developing country like India because of less availability of basic infrastructure in comparison to developed countries. तो इतनी संख्या में इनको डेवलप, ऐसे साइंटिस्ट को, रिसर्च फेलोज को, इंजीनियर डेवलप कर पाना इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंडिया में हमारा इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कामकाज का, हर तरह का रिसर्च का। तो अगर वो इंडिया में ही रहते तो इतने लोग साइंटिस्ट का काम नहीं कर पाते, इतने लोग रिसर्च का काम नहीं कर पाते। ये जब दूसरे देशों में जाने की सुविधा मिली है, वहाँ काम मिला है, तब सब लोग जाके साइंटिस्ट, रिसर्च का काम दुनिया के देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में कर रहे हैं। तो ये फायदा ग्लोबलाइजेशन से ही हुआ। अगर वो यहाँ रहते तो ऐसे ही रह जाते, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, उनको हर देश जाने की छूट मिल गई, आसानी हो गई, तो लोग बाहर जाके जगह जगह काम करने लग गए, पढ़ने लिखने लग गए, टेक्निकल कोर्स करने लग गए, रिसर्च करने लग गए। सर्विस सेक्टर हैज अफेक्टेड, सर्विस सेक्टर वाज अफेक्टेड बाय
प्रेजेंट रिसेशन। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है ये रिसेशन, मंदी, जो सर्विस सेक्टर हैज अफेक्टेड बाय प्रेजेंट रिसेशन। आज जो आर्थिक मंदी चल रही है दुनिया भर में, उससे हमारा सर्विस सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स हैज इंक्रीज्ड बट प्रोड्यूसर्स आर नॉट गेटिंग रीजनेबल प्राइस। आज लोगों कंज्यूमर्स की ज़रूरतें तो बढ़ी हैं, डिमांड बढ़ी है, लेकिन उनके पास पे करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स को पैसा नहीं, तो उसका दाम नहीं सही मिल रहा है। भाई आदमी तो बड़ा, आज हर कोई चाह रहा है हम एसी खरीद लें, कूलर खरीद लें, कंप्यूटर खरीद लें, मोबाइल खरीद लें, जो भी चीज़ खरीद लें, लेकिन वो उतना कीमत नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे की दिक्कत है, क्योंकि बिजनेस कम हो गया है, स्लो हो गया है। खरीदना तो चाह रहा है लेकिन ज़्यादा कीमत नहीं दे सकता है, तो आज प्रोड्यूसर को बहुत कम कीमत पर बेचना उसकी मजबूरी हो गई, नहीं तो बिकेगा नहीं। प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग इनकम लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग इनकम लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जितना खर्च आ रहा है बनाने में, उससे कम दाम पर बेचना पड़ रहा है प्रोड्यूसर को। क्या करेगा, माल रख के क्या करेगा, उसको बेचेगा नहीं तो वो भी डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए कम दाम पर बेचना उसकी मजबूरी हो गई। दिस इज द रीजन दैट टेक्निकल साइंटिस्ट्स आर रीट्रेंच्ड इन डेवलप्ड नेशंस एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। तो आज उसका क्या प्रभाव पड़ा कि जो भी टेक्निकल साइंटिस्ट थे बहुत से डेवलप देशों में, उनको नौकरी से हटा दिया गया, उनको नौकरी से हटा दिया गया कि भाई अब हम नहीं रख सकते हैं आपको, क्योंकि हाँ, रिट्रेंच्ड का मतलब हटा देना। हाँ, डेवलप नेशन में जो पहले नौकरी कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट को, रिसर्च करने वाले लोगों को, उनको कहा गया कि भाई अब हम आपको नहीं पैसा दे सकते हैं, इसलिए आप लोग काम बंद करके जाइए यहाँ से। अभी हम हाँ, रिट्रेंच का मतलब होता है नौकरी से हटा देना। इट अफेक्टेड दोज साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हु वर वर्किंग इन अदर कंट्री। कह रहा है कि ये हमारे उन साइंटिस्ट को प्रभावित किया जो दूसरे देशों में काम कर रहे थे। प्रोड्यूसर्स वर फोर्स्ड टू स्टेप देयर प्रोडक्ट टू स्टॉप देयर प्रोडक्शन। स्टॉप है, देखिए स्टेप नहीं है, स्टॉप है। हाँ, प्रोड्यूसर्स वर फोर्स्ड टू स्टॉप देयर प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो सामान बना रहे थे, जो निर्माता थे, उनको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया। भाई अब क्या करेगा, कम दाम पर बेच के घाटा में रहेगा, लोग ज्यादा दाम देने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो घाटा में थोड़े बेचेगा, उसको बंद करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन बंद कर रहा है। बिकॉज ऑफ एनॉर्मस लॉस, इंसिडेंट्स लाइक सुसाइड स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन डेवलप्ड नेशन। और इसके कारण क्या, और इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है, इसके कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं जी पा रहे हैं ऐसे कंडीशन में, जहां इतना घाटा उनको हो गया कि अब वो कैसे जिए, बर्दाश्त करें। इतना घाटा हो रहा है कंपनियों की, सुसाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं डेवलप्ड कंट्रीज। मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिका स्टॉप देयर सर्विसेज। बहुत सारी जो फाइनेंस की कंपनीज थी अमेरिका में, वो अपना सर्विस बंद कर दिया, मजबूत बंद हो गया है। फाइनेंस का मतलब जो पैसे का लेन देन करते हैं, यही है, लोन है, फाइनेंस जो तरह तरह का है, बैंकिंग है, ये सब। हाँ, तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे अमेरिका के बहुत सारे, वो अपने सर्विस बंद कर दिए, कंपनी बंद हो गई बहुत सारी। Thus, developed countries were adversely affected by present recession और स्लो डाउन। तो ये जो आर्थिक मंदी आई है, स्लो डाउन है या रिसेशन है,
इससे डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। देखिए, अब मैंने कहा ना आपको, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं सबकी हालत खराब है, और सबको अपना बचाने के लिए आज इंडिया के सामने, इंडिया ही एक उसको रास्ता दिख रहा है, इंडिया के सामने झुक रहा है कि इंडिया मार्केट है इतना बड़ा, अगर उनको सामान बेचना है तो इंडिया के इतने लोग खरीदार हैं, तो आज उनको यही दिख रहा है कि भाई यही खरीद सकते हैं, तो इसीलिए आज उनका सामान बिक नहीं रहा है, तो कहाँ बेचेंगे? कोशिश करने में लगे हुए कि इंडिया के लोगों को बेच दें। इसी के लिए सब जो है देश मोदी को बुला बुला के जो है खिला पिला रहा है। हाँ, तो डेवलप्ड कंट्रीज के हर कंट्री की एक समय बहुत शान में रहते थे सब, आज देखिए इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया वॉज नॉट इनॉर्मस। रिसेशन, हाँ, इकोनॉमिक वर्ड है, रिसेशन का मतलब होता है मंदी। देखिए, मैंने आपको बताया था जब इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पढ़ाया था, एक डिप्रेशन होता है और एक रिसेशन होता है। जब आपका ग्रोथ नेगेटिव हो जाता है तो उसको रिसेशन कहते हैं, जब आपका ग्रोथ पहले से कम हो जाता है उसको डिप्रेशन कहते हैं या स्लो डाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपका ग्रोथ रेट था 7%, अब 7% से घट के हो गया 6% या 5%, उसको कहेंगे डिप्रेशन या स्लो डाउन। लेकिन अगर वो 7% 5% से घट के माइनस में चला है, -2%, तब उसको कहते हैं रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन। इकोनॉमी जब डेवलप होता है उसको कहते हैं एक्सपेंशन, फैलना। जब इकोनॉमी सिकुड़ता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, यानी साइज उसका छोटा हो गया, पहले से सिकुड़ गया। इकोनॉमी एक बैलून की तरह समझिए, अपना साइज से ज्यादा फूल गया तो वो हो गया डेवलपमेंट, ग्रोथ। अपना साइज से कम हो गया, छोटा हो गया, तो वो हो गया रिसेशन। और उसका साइज अगर छोटा हो रहा है, मतलब फूला हुआ था वो धीमे धीरे में हवा निकल रही है, उसको कहते हैं डिप्रेशन। समझ गए? हाँ, तो कहा जा रहा है कि इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया वॉज नॉट इनॉर्मस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट एग्जिस्टिंग हेयर। हम पर जो इसका प्रभाव था वो इनॉर्मस नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था इस मंदी का प्रभाव, क्योंकि हमारा कैपिटल मार्केट जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। हम जो है, मैंने बताया कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा विदेशों में पैसा लगाने का अभी फैशन नहीं है। लोग बहुत ज्यादा विदेशी कंपनी, अभी यहीं के कंपनियों में पैसा लगाते हैं लोग, या हमारे यहाँ लोन वगैरह बहुत ज़्यादा लेने का कल्चर नहीं है, लोन पर लोग काम नहीं करते हैं ज़्यादा। विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा लोन पर काम करती हैं, लोन ही पर काम करती हैं। हमारे यहाँ अभी भी लोग सेविंग को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसी को कहा गया कि हमारा कैपिटल मार्केट, यानी जो देखिए कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल का मार्केट। और कैपिटल कैसे लगा रहा है, लोग पूंजी कैसे लगा रहा है, वो लोन लेके लगा रहा है या अपना सेविंग्स में से लगा रहा है। तो क्योंकि अगर लोन लेके रहेगा तो डूब जाएगा। जो अपनी जमा बचत से आपने मिलजुल के पैसों से कैसे भी कर यहाँ के लोगों से मिल पैसे मैनेज किया होगा तो उसका बचा रहेगा। तो यही कहा जा रहा है कि हमारा कैपिटल मार्केट चूंकि स्ट्रांग था इसलिए हम इससे बहुत प्रभावित नहीं हुए। इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व इन आउटसोर्सिंग हेयर। हमारे, मैंने आउटसोर्सिंग आपको बताया था, बेंगलोर जितना नौकरी मिलता है अमेरिका से, यूरोप से, तो इंजीनियर्स हमारे उसमें काम करते हैं आउटसोर्सिंग में। इवन न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारा आईटी सेक्टर बहुत मजबूत है। एंड इंजीनियर्स ऑफ इंडिया आर रैंक्ड हायर इन द होल वर्ल्ड। इंडिया के इंजीनियर्स को पूरी दुनिया में काफी हाई रैंकिंग दिया जाता है। प्रेजेंट रिसेशन slowdown has less impact on India even though there is weak basic infrastructure। कहा जा रहा है कि ये जो रिसेशन के कारण जो हमारे यहाँ मंदी आई है, स्लो डाउन हुआ है, ये इसका इंडिया पर कम प्रभाव पड़ा है।
हालांकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है, उतना मजबूत नहीं है बड़े देशों की तरह, डेवलप्ड कंट्रीज की तरह, लेकिन फिर भी हम बहुत प्रभावित इससे नहीं हुए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ सिटी लाइक बैंगलोर in India is counted among the premier category information technology of the world. बैंगलोर का जो आईटी कंपनीज हैं, आईटी के वहाँ इंजीनियर्स हैं, उनको पूरी दुनिया के प्रीमियर कैटेगरी यानी टॉप कैटेगरी में उनको काउंट किया जाता है। यानी बैंगलोर के जो इंजीनियर्स हैं, बैंगलोर की जो कंपनीज हैं, उनको दुनिया के प्रीमियर यानी बढ़िया टॉप कंपनीज में, टॉप इंजीनियर्स में उनको गिना जाता है। This recession has also less impact on बिहार। कहा जा रहा है कि इस रिसेशन का बिहार पर भी बहुत कम प्रभाव पड़ा है। इंजीनियर्स ऑफ आवर स्टेट एम्प्लॉयड इन द रिसेशन अफेक्टेड नेशंस वर थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे राज्य के जो इंजीनियर्स थे, जो मंदी से प्रभावित हुए देशों में काम कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाल फेंका गया। एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू जॉब्स। तो जब उनको वहां नौकरी से निकाल दिया गया तो नए नौकरी की जरूरत थी उनके लिए। द केस फ्रॉम दीज कंट्रीज कमिंग टू आवर स्टेट वॉज रिड्यूस्ड। एक मिनट यहाँ पर, हाँ एक मिनट कुछ यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक। ये केस नहीं है, क्या होगा यहाँ, ये केस नहीं है, कुछ ये मिसटाइप है वर्ड। एक्चुअली यहाँ पर मतलब है कि इन देशों से जो हमारे यहाँ इनकम हो रही थी वो भी घट गई, जो पैसा आ रहा था वहाँ से। क्योंकि देखिए हमारे इंजीनियर जो विदेश में काम करते थे, लोग जो हमारे देश, हमारे राज्य के जो दूसरे देशों में काम करते थे, तो वहाँ से पैसा यहाँ अपने अपने घर में भेजते थे, जो भी उनका अपने अकाउंट में पैसा रखते थे यहाँ आता था। तो वो जो इनकम होता था हमारे राज्य में, वो पैसा भी चूंकि उनको नौकरी से वहाँ निकाल दिया, तो ये जो है घट गया पैसा आना हमारे राज्य। 10 most parts of the world was adversely affected by present recession। कहा जा रहा है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं, ज़्यादातर हिस्सा दुनिया का, वो इस आर्थिक मंदी, इस रिसेशन से प्रभावित हुआ। बिकॉज ऑफ बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री देयर वॉज नॉट मच नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन इन इंडिया। क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, इसलिए हम पर इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। सर्विस सेक्टर या आईटी में बहुत कम लोग हमारे काम करते हैं, इसके वजह से हम बहुत प्रभावित नहीं हुए। हमारा अपना एग्रीकल्चर से जुड़ाव है हमारा देश का, इसलिए हम बचे रह गए। देयर इज द नेसेसिटी है, केस नहीं है वहां, वर्ड जो है वो उसको काट के मनी मनी कर दीजिए बस। हाँ, the money from these countries coming in our state was reduced। कुछ वर्ड है वो समझ में नहीं आ रहा क्या, वो मिस्टाइप टाइपिंग में गलत हो गया है। खैर देखिए, देयर इज द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार। तो इसीलिए हमारे बिहार में खास करके एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री हैं उनको और डेवलप करने की, मजबूत करने की ज़रूरत है।
we have seen that India was less adversely affected by the present recession in comparison to developed countries. हमने देखा कि हमारा देश भारत दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में इस रिसेशन से कम प्रभावित हुआ. It is expected that in 21st century India will be counted among the developed countries by reaching highest level because of strong Indian capital market, high level efficiency of human labor and major labor force. तो कहा जा रहा है इट इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद किया जा रहा है, माना जा रहा है इन 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में यानी इस सेंचुरी में इंडिया विल बी काउंटेड अमंग द डेवलप्ड कंट्री. इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाएगा बाय रीचिंग द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि हम अपने विकास का, डेवलपमेंट का हाईएस्ट लेवल को पहुंचेंगे, यानी हाईएस्ट डेवलपमेंट हो पाएगा हम लोग का. बिकॉज ऑफ, किसके कारण? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडियन कैपिटल मार्केट. एक तो हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है, हाई लेवल एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन लेबर, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनका एफिशिएंसी बहुत हाई है, एंड मेजर लेबर फोर्स, और हमारा लेबर फोर्स बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास काम करने वाले लोग हैं और जो कि अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, ऐसे लोग काफ़ी हैं. तो इन सब की वजह से हम डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा गिनती होना शुरू होगा. There are many possibilities of development of service sector in India and especially in Bihar in coming years. तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया और खास करके बिहार में आने वाले सालों में सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट होने का बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, बहुत सारा चांस, बहुत सारे मौके हैं कि भारत और बिहार का आने वाले सालों में सर्विस सेक्टर यानी तरह तरह के जो रोजगार हैं काम करने वाले, उनका डेवलपमेंट होगा. देयर विल बी मोर एजिंग पर्सन्स इन कंपैरिजन टू यूथ इन होल ऑफ अमेरिका इंक्लूडिंग चाइना एंड कंट्रीज ऑफ यूरोप, whereas India will be country of youth and outsourcing of efficient workers will take place in the whole world. कहा जा रहा है कि आज के डेट में या आने वाले सालों में अगर हम गिनती करें तो अमेरिका, चाइना, यूरोप के देशों को हम मिला लें तो उसमें एजिंग पर्सन्स ज़्यादा होंगे, यानी कि बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे युवा लोगों से, जितने हमारे देश में हैं. हमारा देश कंट्री ऑफ यूथ यानी युवाओं का देश होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कुछ पिछले क्लास में कि हमारे देश में अभी यूथ का परसेंटेज सबसे हाई है पूरे वर्ल्ड में. तो बाकी देशों में क्या है, पॉपुलेशन का एज ज़्यादा हो चुका है. जापान में सबसे ज़्यादा है, जापान में बहुत ज़्यादा बूढ़े बूढ़े लोग, 100 साल से ज़्यादा के लोग भरे हुए हैं वहाँ. तो अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूथ है. तो कह रहा है कि आने वाले सालों में इन सब देशों में, अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये सब जो देश हैं, इनमें बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जबकि हमारा देश युवाओं का देश होगा. तो नेचुरल है कि नौकरियां कहाँ मिलेंगी, सब इंडिया के लोगों को, इंडिया के युवाओं को नौकरियां मिलेंगी. आउटसोर्सिंग जो होगा, तो यही कहा जा रहा है कि एंड आउटसोर्सिंग ऑफ इफिशिएंट वर्कर्स विल टेक प्लेस इन द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जो काम है वो आउटसोर्सिंग करके कहाँ दिया जाएगा, इंडिया के यूथ को दिया जाएगा, क्योंकि बूढ़े लोग से कौन काम कराएगा. जिसको 50 साल का काम करने वाला मिल रहा हो और एक 20 साल, 25 साल, 30 साल का काम करने वाला मिल रहा हो, तो किसको नौकरी देगा, 30 साल वाले को देगा. तो इसलिए आने वाला समय हमारा है, इसीलिए हमें अपने यूथ को डेवलप करना है, उसको अच्छा एजुकेशन देके, उसको अच्छा ट्रेनिंग देके, उसको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी देके, उसको अच्छा हाउसिंग फैसिलिटी देके, उसको अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देके, तो हमारा देश डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाएगा और हमारा बिहार राज्य भी जो है आगे चल के डेवलप्ड स्टेट्स में गिना जाएगा, न कि देश के पिछड़े राज्य. तो इस तरह हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया. बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके मेंस के लिए
और इंटरव्यू के लिए और अपनी एक डेवलपमेंट के लिए, अपनी सोच समझ डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इसको चैप्टर को मैंने आपको बहुत ही डिटेल में खोल के समझा दिया अच्छे से। इसको अच्छे से सुन के फिर से वीडियो से दिमाग में सारी बातों को बिठा लीजिएगा। इसी तरह की सोच अपने आप को डेवलप करनी है। जो मैंने बातें कही हैं वही बातें आपको दिमाग में डेवलप करनी है, वही लाइन को लेके चलना है और लिखना है और बोलना है। और निश्चित रूप से आप अपने आप को अच्छी सेवा में पाइएगा, अच्छे सर्विस में आप पाइएगा। बस इस चैप्टर को जो बातें बताए हैं, समझाएं, उसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, उसको बोल के प्रैक्टिस करना है। बोलिएगा तब ना सामने वाला जानेगा कि क्या सोच रहे हैं। तो जैसा बोलिएगा वैसा ही सामने वाला समझेगा। इंटरव्यू में आपको वही समझेगा जो आप बोल के वहाँ बताइएगा। इसलिए इन बातों को दिमाग में, अच्छे विचार मैंने आपको जो दिए हैं, इसको बिल्कुल रट लेना है, सीख लेना है, दिमाग में बिठा लेना है और इसी सोच के साथ चलना है और एक अच्छा सर्विस ज्वाइन करना है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन फिर चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर।